सो बेसिकली हुआ ये है कि इन इंडिया बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश द मुगल्स वर द रूलर्स, ठीक है, एंड द मुस्लिम्स वर इन अ रियल बैड कंडीशन. द मुस्लिम्स वर अवे फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, दे हैड फॉरगॉटन व्हाट इस्लाम हैज टॉट देम. और वो वही जैसे मुगल्स के हालात थे कि मुगल्स वर इन्वॉल्वड इन देयर लग्जरियस लाइव्स, तो मुसलमान भी जो हैं वो अपने आप में थे, एंड दे हैड फॉरगॉटन इस्लाम. At that point of time, Shah Waliullah has been a reformer who tried to protect the Muslims, who tried to reinforce the teachings of Islam, and who tried to bring the Muslims towards Islam. ठीक है. शाह वलीउल्लाह का ब्रीफ बैकग्राउंड कुछ याद करना पड़ेगा, तो एनी 3 points about the brief background of Shah Waliullah is going to be enough. Shah Waliullah was born on 21st of Feb 1703 in a respectable family of Delhi. His complete name was Qutbuddin Ahmad ibn Abdul Rahim, but because of his pious nature, people called him as Shah Waliullah. His father Shah Abdul Rahim was famous for his knowledge and greater understanding of Islam, and his father was the founder of Madrasa Rahimia. Basically उस जमाने में schools नहीं हुआ करते थे, so there used to be the madrasas where religious teachings as well as that school teaching was done as well. So his father had opened a madrasa. जी बिल्कुल शासन, ये वाली बात हम आगे करेंगे. So his father had opened a madrasa and that was called as Madrasa Rahimia. So Shah Waliullah got his early education from his father and later he started teaching at Madrasa Rahimia. तो ये फिर मदरसा रहीमिया के में जो है वो पढ़ाने लग गए. और उस जमाने में जो है वो होता ये था कि देयर वाज अ ट्रेंड कि everyone who wanted to seek knowledge of Islam, they used to go to Hijaz, to Saudi Arabia. They used to remain there for about 8-10 years, और वो लोग वहां पर रुक कर और एजुकेशन हासिल किया करते थे. तो सेम हैपेंड विद शाह वलीउल्लाह एज वेल. बेसिकली Shah Waliullah, he went for Hajj and he remained there for about 8 years. 8 साल ये वहीं रहे और he learned about hadith, fiqh from various scholars. मुख्तलिफ scholars से इन्होंने सीखा है. Scholars के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को. अच्छा जी, so शाह वलीउल्लाह इज़ इन सऊदी अरेबिया, और इधर इंडिया में दिल्ली में जो है वो riots are going, the Muslims are fighting over with each other, the Muslims are away from the teachings of Islam, and a lot of problems are being happening, and no one is there to listen to the problems or to address the problems of the Muslims. कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, and a lot of problems are being faced by the Muslims. ये देखा जा रहा है. At that point of time, Shah Waliullah saw a dream one night that he has come back to Delhi with a new task. So after his dream, he thought that maybe it was an indication by Allah Almighty that he needs to return back to Delhi. So he came back to Delhi. When he came back to Delhi, he realized that really the situation was out of control. Actually, he was born before 4 years before the death of Emperor Aurangzeb. और Emperor Aurangzeb के बाद तो इस बात को हमने डिस्कस किया है पहले भी कि after the death of Aurangzeb, the Mughal Empire started to decline, and the Muslim community experienced severe problems and un-Islamic practices were growing quickly. So at that point of time, a religious reformer was needed, and that was Shah Waliullah. अब Shah Waliullah के जो reforms हैं, that are divided into 4 categories. इसको category wise अगर याद करेंगे तो आसान रहेगा. अगर इसको category wise याद नहीं करते हैं तो that is going to be problematic for you guys, और उसमें थोड़ा सा ये हो सकता है कि उसको समझने में या उसको जो है वो लिखने में issues हो सकते हैं. So the reforms of Shah Waliullah are divided into 2 categories. We have the religious reforms, we have the social reforms, we have the political reforms, and we have the economic reforms. ठीक है, अब एक एक करके सारे रिफॉर्म्स को डिस्कस करते हैं. टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस रिफॉर्म्स, तो सबसे पहले जो हारिस और शाह हसन ने बात की है उसको कोट करूंगा कि शाह वलीउल्लाह वांटेड द मुस्लिम्स टू अंडरस्टैंड द होली कुरान. द होली कुरान वाज इन अरबिक लैंग्वेज, और मुसलमानों को अरबिक लैंग्वेज आती नहीं थी. द मुस्लिम्स न्यू द पर्शियन लैंग्वेज. सो शाह वलीउल्लाह ही ट्रांसलेटेड द होली कुरान इनटू पर्शियन लैंग्वेज, क्योंकि शाह वलीउल्लाह अरबिक लैंग्वेज तो सीखे हुए थे सऊदी अरेबिया में. इन्होंने अरबिक से पर्शियन लैंग्वेज में कुरान को ट्रांसलेट किया सो दैट द मुस्लिम्स कुड अंडरस्टैंड कुरान.
ये तो सबसे पहली इनकी रिलीजियस सर्विसेज है। उसके बाद ये था कि देयर वाज a fight going on between Shias and Sunnis. So he basically tried to remove the misunderstandings between Shias and Sunnis, and for that thing he wrote a book called as Izalatul Akhfa. इस बुक को लिखकर इसमें शाह वलीउल्लाह हाईलाइटेड कि भाई शियाज एंड सुन्नीस जो हैं इनके दरमियान कोई डिफरेंसेस नहीं है और इनको अपने डिफरेंसेस को खत्म कर देना चाहिए एंड द मुस्लिम्स शुड बी यूनाइटेड टुगेदर because unity is the core of Islam, and it has also been said by Allah Almighty in the Holy Quran as well के and hold together the rope of Allah and do not be disunited. तो ये बात जो है वो शाह वलीउल्लाह ने कोट की और कोशिश की कि the society should be brought together. ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शाह वलीउल्लाह। इससे पहले कभी ट्रांसलेशन नहीं हुई थी पर्शियन लैंग्वेज में, पहली दफा शाह वलीउल्लाह ने की ताकि द मुस्लिम्स कुड अंडरस्टैंड द कुरान and they could act upon the teachings of Quran so that the society could be made a peaceful place. एक और चीज शाह वलीउल्लाह ने जिसको इंट्रोड्यूस किया है, री इंट्रोड्यूस किया है, वो है इज्तिहाद। इजमा या कयास के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो इस्लामियात में, कयास is basically when the Muslim scholars they try to find out a solution to a problem which is not mentioned in the ijma is basically when the Muslim scholars they try to find out a solution to a problem which is not mentioned specifically in the Holy Quran and Sunnah. या कयास होता है जिसमें basically explanation or interpretation of a particular law of Holy Quran or Sunnah is being done by the Muslim scholars. ये पहले हर रिफॉर्मर को, हर मुस्लिम स्कॉलर को अलाउड नहीं था। ओनली अ फ्यू मुस्लिम स्कॉलर्स वर अलाउड के इज्तिहाद कर सकते थे, यानी इजमा कयास परफॉर्म कर सकते थे। उसको जो है वो बेसिकली उसके लिए शाह वलीउल्लाह रोट अ बुक हुज्जतुल्लाहुल बालिगा वेयरइन ही इन्फॉर्म्ड द पीपल कि भाई बेसिकली इज्तिहाद जो है वो ज़रूरी है और इज्तिहाद होना चाहिए। क्यों नहीं है इज्तिहाद? और लोगों को आज़ादी होनी चाहिए कि द मुस्लिम स्कॉलर्स दे शुड एक्सप्लेन द कुरान टू द पीपल। लोगों को अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, तो मुस्लिम स्कॉलर्स को इस बात का जो है वो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि दे शुड एक्सप्लेन द थिंग टू द पीपल के अगर कुरान में कोई लॉ है तो वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है। तो ये एक और रिलीजियस एफर्ट है शाह वलीउल्लाह की। Now talking about the social efforts of Shah Waliullah. So if we talk about the social efforts of Shah Waliullah, तो उसमें हमारे पास क्या क्या है? First of all, he set up a social order on the basis of unity, brotherhood, fraternity and economic equality. Economic equality का मतलब है कोई अमीर गरीब नहीं होगा। Brotherhood, fraternity मतलब unity in the society. And these were the characteristics of social system at the time of the caliphs. Four caliphs इस्लामियात में आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो जो कैलिफ्स के जमाने में जिस तरह का सिस्टम होता था, उस तरह का सिस्टम जो है वो शाह वलीउल्लाह ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। Moreover, the Muslims at that time they were adopting the customs of the Hindus. So Shah Waliullah told the Muslims that they should not be adopting the customs of the Hindus, the traditions of the Hindus. ये शाह वलीउल्लाह ने हाईलाइट किया कि भाई ये मुसलमानों का काम नहीं है कि वो हिंदूज के जो है वो कस्टम्स या ट्रेडिशंस को अडॉप्ट करें। Further, he educated the people not to spend extra on different festivals and marriage ceremonies. शाह वलीउल्लाह ने कहा कि भाई मुसलमानों का ये कस्टम नहीं है कि वो मैरिज सेरेमनीज और इन चीज़ों पे जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चा करे, तो ये जो है वो नहीं होना चाहिए, मुस्लिम्स को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दैट इज समथिंग टोटली रॉन्ग। ये शाह वलीउल्लाह के सोशल रिफॉर्म्स में आता है। आगे बात कर लेते हैं पॉलिटिकल सर्विसेज में। तो दो सर्विसेज हैं शाह वलीउल्लाह की विच आर गोइंग टू बी कैरेक्टराइज्ड एज द पॉलिटिकल सर्विसेज ऑफ शाह वलीउल्लाह। द फर्स्ट इज बेसिकली दैट ही रोट लेटर्स टू द मुगल एम्परर। अच्छा, उस जमाने में एम्परर के आगे बोलना या एम्परर को क्रिटिसाइज करना बड़ी खतरनाक बात थी, बिकॉज इफ द एम्परर गेट्स एंग्री सो ही इज गोना गेट यू किल्ड, सिंपल, एंड ही वाज द एम्परर, नो वन इज गोना स्टॉप हिम। लेकिन शाह वलीउल्लाह वाज a very bold and brave person. He wrote a letter to the Mughal ruler and he criticized the luxurious life of the Mughal ruler. कहा कि भाई तुम लोग जो जिंदगी गुजार रहे हो, that is not the lifestyle that has been prescribed in Islam for the rulers. The ruler is the servant of the people, so you can't be spending a luxurious life like this. And he advised
the Mughal emperors to come back to their real responsibilities, and the real responsibility was to serve the nation. तो शाह वली ने कहा भाई इसको करने की जरूरत है, इसको करें. अच्छा, इसके अलावा उस जमाने में ये था कि द मराठास आर द साउथ इंडियंस, एक्चुअली दे वर अटैकिंग द मुस्लिम्स एंड द मुस्लिम्स वर लेफ्ट हेल्पलेस, उनको कोई बचाने वाला नहीं था. So Shah Waliullah, he wrote a letter to Ahmad Shah Abdali. अच्छा, अहमद शाह अब्दाली बोलें या अहमद शाह दुर्रानी बोलें, एक ही बात है. Shah Waliullah wrote a letter to Ahmad Shah Abdali. Ahmad Shah Abdali was the ruler of Afghanistan. He wrote a letter to the ruler of Afghanistan और उससे कहा कि मुसलमानों पर अटैक हो रहा है, आकर इनको बचाओ. So Ahmad Shah Abdali, he came to defend the Muslims of India. He defeated the Marathas in the third battle of Panipat in 1761. And that is also an effort of Shah Waliullah which has been done by him. ठीक है, तो ये जो है वो बेसिकली पॉलिटिकल सर्विस है ऑफ शाह वलीउल्लाह. आगे बढ़ते हैं तो द नेक्स्ट सर्विस ऑफ शाह वलीउल्लाह इज द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. इकोनॉमिक वर्ल्ड हिस्ट्री में जब कभी भी आएगा तो जहन में रखिएगा कि इट इज समथिंग आइदर रिलेटेड टू मनी और इंडस्ट्री कॉमनली, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में ही क्रिटिसाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी and he stressed upon equal distribution of wealth with the help of system of zakat. Shah Waliullah का ये कहना था कि the rich should pay zakat to the poor people so that the poor people can satisfy their wants or whatever it is in life. और उससे जो है ये सोसाइटी में जो पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट आ गया ये नहीं होना चाहिए. अच्छा, उस जमाने में क्या होता था कि द गवर्नमेंट वाज चार्जिंग हैवी टैक्सेस फ्रॉम द पीपल, सो ही स्टार्टेड टू रेज वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कि भाई इन इस्लाम द गवर्नमेंट इज प्रोहिबिटेड टू टैक्स द पीपल बियॉन्ड देयर कैपेसिटी. अगर लोगों की कैपेसिटी से ज्यादा गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो ये गलत है, इस्लाम में नहीं है. इसके खिलाफ शाह वलीउल्लाह ने आवाज उठाई. ही ऑल्सो रेज्ड वॉइस फॉर द राइट्स ऑफ द लेबरर्स एंड द फार्मर्स हु वर देयर इन द सोसाइटी. तो उनको जो है वो बेसिकली पैसे कम मिला करते थे. द गवर्नमेंट वॉज नॉट पेइंग देम, ऑल्दो फार्मर है तो फार्मर से काम लिया जा रहा है, प्रॉपर सैलरीज नहीं दी जा रही हैं. तो शाह वलीउल्लाह ने कहा कि ये फार्मर काम करता है तो हमारी फूड सप्लाई आती है ना, क्रॉप्स आते हैं हमारे पास, तो फार्मर को प्रॉपर सैलरी मिलनी चाहिए. व्हाई इज ही नॉट बीइंग पेड? सो ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ शाह वलीउल्लाह. Shah Waliullah died in the year 1762. After him, his son Shah Abdul Aziz translated the Holy Quran into Urdu language, and his sons actually carried on basically the. इनके 4 बेटे थे और all 4 sons actually they contributed in the services of Islam a lot of. मदरसा रहीमिया को कंटिन्यू किया है, बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिकली आपके पास शाह वलीउल्लाह की तरफ से आती हैं. ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चंस हैं. कॉमनली शाह वलीउल्लाह पे या तो क्वेश्चन बनता है 7 मार्क्स का या क्वेश्चन बनता है 4 मार्क्स का. 7 मार्क का क्वेश्चन क्या बन सकता है? व्हाई डिड शाह वलीउल्लाह रिवाइव इस्लाम इन द सबकॉन्टिनेंट? व्हाई डिड शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेट द होली कुरान इनटू पर्शियन लैंग्वेज? या व्हाई डिड शाह वलीउल्लाह इंट्रोड्यूस्ड द रिलीजियस रिफॉर्म्स? इस तरह के कॉमनली क्वेश्चंस 7 मार्क्स के बनते हैं.